Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So in the today's lecture, we will discuss the hydrogen hyperfine structure. अब तक हम लोगों ने स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन में देखा था कि फाइन लाइंस थी, यानी पहले तो जो लीनियर स्पेक्ट्रा है, then after we will have the fine lines. Now we are talking about the hyperfine lines. And very beautiful picture has been given on the lower side of this first slide. On the right hand side, we have a very renowned experiment of the Zeeman effect. And on the left hand side, we have the basic concept of the hyperfine line using the hyperfine number, that is F. So how F we will have, what is I, how it is interacting with J, all these things we will discuss today. So before starting this one or two things are very important about the hyperfine lines. Basically what happened when the spectral lines of hydrogen were observed with the high resolving power spectrometer, then it has been obtained that around the fine lines, there are certain lines which have very less intensity and separated by few wave numbers. Then there was a confusion that why we are getting such lines. What the region of that line? Then first hypothesis or the first suggestion came that these are due to the isotopes of the same material. Do you know what are the isotopes? Rolly, do you know that what are the isotopes? सर एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक और एटॉमिक और नंबर जो सेम होता है. हाँ एटॉमिक नंबर सेम होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. अच्छा, आकांक्षा बताओ ये सही बोल रही है? नो सर, नहीं भाई सही बोल रही है, तो क्या सही है जरा बताओ. सर एटॉमिक नंबर सेम होता है बट उनके जो एटॉमिक वेट्स होते हैं वो चेंज होते हैं. मतलब यह है कि जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो डिफरेंट होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन है वो डिफर करता है, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं. हाइड्रोजन का कोई आइसोटोप बता सकते हो? Deuterium. Deuterium is the example of the hydrogen isotope. So basically this deuterium was discovered on the basis of the presence of these weak spectral lines around the fine lines of the hydrogen. तो ये कहा गया कि जो ये लाइंस आ रही हैं, फाइन लाइंस, हाइपर फाइन लाइंस कह लीजिए, यानी फाइन लाइन के बगल में, उससे थोड़ी दूरी पर और फेंटेड लाइंस आ रही हैं, these lines are due to the isotopes of the same atom. So how that can be estimated, Nani? How we can have the proof of the existence of the deuterium on the basis of the presence of hyperfine line? One thing I will see here. And other thing is that in some cases it has been also observed that number of fainted lines which are separated by few wave numbers from the fine lines, they are more in number in comparison to the presence of isotopes of that element. यहां तक तो बात सही थी कि आइसोटोप की वजह से हाइपरफाइन लाइंस आ रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हुए जिसमें हाइपरफाइन लाइंस की संख्या उसके पॉसिबल आइसोटोप से भी ज्यादा थी. उनका एक्सप्लेनेशन करने के लिए एक दूसरी आइडिया को इनबिल्ट किया गया, एक दूसरी आइडिया को इम्बाइब किया गया, दैट वाज द स्पिन मोशन ऑफ द न्यूक्लियस इटसेल्फ.
And that contribution has been given exactly in the same way as we have the orbital angular momentum, orbital quantum number. Similarly, we have the nuclear spin quantum number. And they have their interaction with the total angular momentum quantum number of the element or the atom itself. And they are really responsible for the presence of the hyperfine lines in the elements. यानी अब तक हमने क्या कॉन्क्लूड किया? नंबर 1 ये कॉन्क्लूड किया कि फाइन लाइंस की प्रेजेंस जे की वजह से होती थी, जो कि एल और एस का कॉम्बिनेशन था, यानी ड्यू टू द इंटरैक्शन ऑफ द स्पिन एंड ऑर्बिट we have another quantum number that is J, and J was responsible for the explanation of the fine lines in the elements. And now for the explanation of the hyperfine lines, two things has been suggested. Number 1, either these lines are due to the presence of isotopes of elements or due to the spin orbit nuclear spin quantum number. And now due to the combination of L and S will have J, and now due to the combination of J and I, which I am saying that I is the nuclear spin quantum number, and due to the combination of this we have F number, which you have seen at the front of the slide, which has been shown is in the starting of the lecture at the left hand side. Things are clear. I think that the things are clear now. I should proceed for the further discussion. Pooja? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So when the fine structure J and I के कॉम्बिनेशन से F बन रहा है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है हाइपर फाइन स्ट्रक्चर लाइंस के लिए। एग्जैक्टली वही रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि आइसोटोप्स के बारे में पहले ये दिया गया जरूर, लेकिन आइसोटोप की प्रेजेंस की वजह से हाइपर फाइन लाइंस हैं। इसका बहुत सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि ढेर सारी हाइपर फाइन लाइंस मिल रही थी, जबकि उतने नंबर ऑफ आइसोटोप्स नहीं थे उस एलिमेंट के। कई एलिमेंट्स में ऐसा हुआ, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बाद में असाइन किया गया सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपर फाइन लाइंस के लिए, वो I, J and F किया गया, which I am going to discuss, and you will see that how we'll have, and I will solve more numerical also, because many times I have seen that in the CSIR and GATE examination, you will get at least one question from this side. And the objective of this lecture is that you should be able to solve the problems which you are getting in such examinations. So when the fine structure lines are observed in the with the instrument of highest possible resolution, then the fine lines are further splitted. This splitting is known as the hyperfine structure caused by the properties of atomic nucleus. Atomic nucleus कहा जा रहा है। Atomic nucleus में दोनों पार्ट आ गए, दोनों बात आ गई, यानी atomic nucleus उसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए डिफरेंट हो सकता है जो इसे आइसोटोप बनाएगा, और एटॉमिक न्यूक्लियस स्पिन भी कर सकता है जिसकी वजह से स्पिन न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस होगी। द रीजन ऑफ द फाइन हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, द फर्स्ट may be due to the presence of the different isotopic species in the element under investigation. The energy level of isotopes are slightly displaced relative to each other, producing the spectral transitions at slightly different wave numbers. The second is charged nucleus possessing the
possesses spin angular momentum and associated magnetic dipole moment. An interaction between the internal magnetic field produced by the orbital motion of the electron in the atom and spin magnetic dipole of the nucleus cause the hyperfine splitting of the spectrolines. This is the main reason. The presence of isotope is not a main reason. Initially, it has been considered, and in case of hydrogen, they were very much almost successful to explain the presence of hyperfine line. But in many other cases, in many other elements, this idea was failure. That's why this interaction between the internal magnetic field produced by the orbital motion of the electron and the spin magnetic moment of the nucleus was really responsible for the splitting of the fine lines. So isotopes of the same element have the same electron but the different masses. What I was asking to you people. और इतनी छोटी छोटी चीजें अब इस स्तर पर अगर आप नहीं बता पाते हो तो आपको थोड़ा अपना आत्मावलोकन करना चाहिए कि where you are staying, where you are. Due to the change in mass, Rydberg constant changes slightly differ for different isotope. देखो, चूंकि Rydberg constant न्यूक्लियस पर निर्भर करता है, इसलिए जब इसके न्यूक्लियर मास चेंज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप के लिए डिफरेंट Rydberg कांस्टेंट होगा. Correspondingly, the atom transitions is different in different isotopes give rise to the slightly different wave number. The variation in Rydberg constant is particularly marked in hydrogen. Each of four first member of the Balmer series, that is H alpha, H beta, H gamma, H delta, has a very weak companion on the short wavelength side are at a distance of 1.79, 1.33, 1.19 and 1.12 एंगस्ट्रॉम respectively. क्या देखा गया कि कंपेनियन माने उसके एक साथी जो छोटे उसके 60 वेवलेंथ की साइड में नीचे जो दिया गया है कि करीब करीब 1 से 2 एंगस्ट्रॉम के वेव नंबर डिफरेंस पर वीक स्पेक्ट्रोलाइंस एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा और एच डेल्टा के पास अपीयर हो रही थी. तो these ships agree with the theoretical values if the companion are attributed as due to the presence of isotope of mass 2, that is the deuterium, and it was in this way that the existence of heavy hydrogen was first established. इसके पहले ड्यूटीरियम का एस्टैब्लिशमेंट या ड्यूटीरियम होता है इसके बारे में कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था. ये जो प्रेजेंस ऑफ स्पेक्ट्रोलाइंस थी ये इसको प्रूव करने में मदद करी कि ड्यूटीरियम कहिए कि ड्यूटीरियम की खोज इसी स्पेक्ट्रोलाइंस की प्रेजेंस के आधार पर हुई. कैसे हुई उसको मैं अभी दिखाऊंगा आपको. Let us calculate the shift of H beta line. For this transition we have from the Balmer formula. Balmer formula हमने लिया और हाइड्रोजन के लिए Rydberg कांस्टेंट निकाला, उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकाली, इसकी वेव नंबर जिसे कह रहे हैं 1/लैम्डा, और ड्यूटीरियम के लिए भी हम वेव नंबर निकाले और उसके लिए Rydberg कांस्टेंट Rd लिया गया. ऑब्वियस सी बात है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया गया. Rd अपॉन RH इज इक्वल टू RH अपॉन Rd और दोनों को डिफरेंस लेकर के उनका जब कैलकुलेट किया गया तो लैम्डा डी माइनस लैम्डा एच अपॉन लैम्डा एच इज इक्वल टू RH माइनस Rd अपॉन Rd एंड दिस डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू माइनस H माइनस लैम्डा एच RH माइनस Rd अपॉन Rd. और जब सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज रखी गई तो देखो ये वैल्यू आई -1.3
32 एंगस्ट्रॉम, माइनस माने शार्टर वेवलेंथ की तरफ, इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, दैट इज द हाइड्रोजन H बीटा लाइन के शार्टर वेवलेंथ साइड में एक और फेंटेड लाइन या वीक लाइन मिलेगी। वो किसकी वजह से मिलेगी? वो ड्यूटेरियम की वजह से मिलेगी। और इस तरीके से एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हो रहा था। इस आधार पर यह कहा गया कि ऑब्वियसली this spectral line is due to the deuterium and hence the existence of the deuterium has been proved. Now next part is the nuclear spin and hyperfine splitting. Yani the splitting of the fine lines, that is known as the hyperfine splitting, that has been caused by the nuclear spin. So what is the logic and what is the hypothesis corresponding to that? Let us see here. In many cases, isotope effect fails to explain the hyperline structure. What already I have told you people. The number of hyperline components is often greater than the number of isotopes. Pauli in 1924 pointed out that the hyperfine lines could be explained when it is assumed that the atomic nucleus possesses the spin angular momentum I, with which there is an associated magnetic dipole moment mu I. The magnitude of the nuclear angular momentum is I is equal to mod of I is equal to under root I into I plus 1 into H upon 2 pi. Exactly, it is in the same fashion, in the same manner as we have studied in case of L, S, J. Similarly, we have this value I for the nucleus especially. So similarly, L, S, J, the component of I along Z axis can be given as Iz is equal to MIH upon 2 pi. All the story is exactly same as we have studied in case of L and S as well as in J. The nuclear magnetic quantum number Mi has two I plus 1 values given by Mi is equal to I minus 1 up to minus 1. Yani I से माइनस I तक Mi की वैल्यू एक्सटेंड होगी. Nuclear magnetic moment is given as mu I is equal to Gi under root Li into I plus 1 into Eh upon 4 pi mp. Or mu I is equal to Gi under root L into I plus 1 into mu n, where mu n is known as the nuclear magneton, and its value is given as Eh upon 4 pi mp. The component of mu I along the Z axis is given as mu Iz is equal to Gi Mi mu n. Since the maximum value of Mi is I, the maximum observable component of mu I is Gi mu n and is commonly called as the nuclear magnetic moment. It is roughly 100 times smaller than the electron magnetic moment. So most of the things we have discussed this in case of the mu L, mu J, and mu S. So similarly, in the same fashion, in the same way, we have the values of Mi, mu I, and the related value of mu Iz. Let us have the pictorial representation of the same. Total angular momentum of the atom is given as F is equal to क्या हुआ I plus S plus L plus S plus I, and that is equal to J plus I, क्योंकि L plus S को हम J लिखते हैं. तो hyperfine quantum number F can take the values, that is F is equal to J plus I minus 1 and up to J minus I. Giving 2J plus 1 values if I is greater or equal than J, and having 2I plus 1 values if I is less or equal to the J. And the vectorial representation of the same has been shown in the figure कि L और S दोनों जब इसका वेक्टर कॉम्बिनेशन होगा तो क्या आएगा J, और
J के साथ जब I का वेक्टर कॉम्बिनेशन होगा तो दैट विल बी F. This is the total story related to the orbital, spin, total and nuclear magnetic moment of the particular atom. It means that as a result of I-J interaction, each fine structure J level is split into 2J plus 1 or 2I plus 1 hyperfine lines, or hyperfine structures, or labels, and is characterized by an F value. The I-J interaction energy can be given as delta E dash is equal to 1 upon 2A within bracket F plus 1, F plus 2 minus F plus 1. And finally, you will have the value that is the delta E dash is equal to A dash F plus 1. Thus, the energy interval between the consecutive hyperfine levels F and F plus 1 is proportional to the larger of the F value, that is the Lande interval rule. इसको हम आगे जब कपलिंग पढ़ाएंगे, JJ कपलिंग, LL कपलिंग, LS कपलिंग, तो उसमें एक बार फिर आएगा ही. The order of hyperfine levels in some hyper multiplets is normal, that is the smallest F level deepest, while in other it is inverted, that is the F level is the deepest. ये जो मल्टीप्लेट्स होती हैं उनका अरेंजमेंट होता है कि कैसे ये ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करने के ऊपर वाली और नीचे वाली जो हाइपरलाइन स्प्लिटिंग होती है उनमें F की वैल्यूज को हम कैसे लोअर से हायर की तरफ या हायर से लोअर की तरफ रखेंगे. The selection rule for F for electric dipole transition is similar to that of J, that is delta F is equal to 0 plus minus 1 plus, but 0 to 0 value of F transition is not possible. Let us take the example. This is very good example, and you will be very much clear how to find the fine structure lines. So the hyperfine structure of bismuth line 4722 angstrom for bismuth I is equal to 9/2. ऐसे एग्जाम्पल आपको दिए रहेंगे और आपको ये पूछा जाएगा कि इसमें कितने पॉसिबल ट्रांजिशन हैं, या इनका नंबर बताइए, या कितनी स्प्लिटिंग होगी. ऐसे करके अगर मल्टीपल चॉइस में दिया जाएगा तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा. मैंने इसको ट्राई किया है समझाने के लिए आपको. द फाइन स्ट्रक्चर इन बिस्मथ जोन सोच JJ कपलिंग. पहली बात तो ये आपको देखना होगा कि जिस एग्जाम्पल के लिए प्रॉब्लम दी गई है, यानी जो प्रॉब्लम दी गई है उसमें किस तरीके की कपलिंग हो रही है और उस कपलिंग का क्या सीन है, क्या किस तरीके से उनके लाइंस आएंगी, किस तरीके से उनकी स्प्लिटिंग पॉसिबल है. द ट्रांजिशन करस्पॉन्डिंग टू दीज लाइंस इज, यानी बिस्मथ में जो इनका ट्रांजिशन होगा वो किन के बीच में होगा. बेसिकली जो आपके ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए. तो कहां से कहां ट्रांजिशन हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तो यहाँ पर हमने ये देखा कि 6p2 7s से ट्रांजिशन हो रहा है. कहां पे हो रहा है? 6p3 पर हम ट्रांजिशन ले रहे हैं. इस ट्रांजिशन में जो ये बीच की वैल्यूज आ रही कैसे कैलकुलेट होती हैं, ये थोड़ा सा इसमें आपको अपनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. हाउ वी आर, although this has not been mentioned in the text, but I have tried to explain it. और जब इसे JJ कपलिंग पढ़ेंगे या LS कपलिंग पढ़ेंगे, LL कपलिंग पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको और क्लियर होंगी. How we are getting 1/2, 1/2, 3/2 at half, and 1/2, 3/2, 3/2 at 3/2, corresponding to 6p2 7s and 6p3. तो फॉर PS, यानी जो पहला वाला टर्म है, पहले वाले को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है. फॉर PS स्टेट L is equal to 1 and
जीरो, क्योंकि L इज इक्वल टू 1 माने P, L इज इक्वल टू 0 माने S। तो S की 3 वैल्यूज हो गई, S इज इक्वल टू हाफ, S इज इक्वल टू हाफ, S इज इक्वल टू हाफ। अब J की वैल्यू निकालने के लिए हम कहते हैं कि J की वैल्यू L माइनस S से L प्लस S तक वेरी करती है। यानी आपका ये जो वैल्यू होगी, अगर हम L की फर्स्ट वैल्यू ले तो हमें कहेंगे कि 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ एंड 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू 3/2। लेकिन इसमें एक्चुअली क्या है कि L की अगर हमारे पास S की 3 वैल्यूज हैं तो हमें इसका रूल ये होता है कि पहले S1 और S2 को हम कंबाइन करते हैं, इसका जो रिजल्टेंट आता है उसके दोनों रिजल्ट को बारी बारी से तीसरे के साथ कंबाइन करते हैं। तो यहाँ नाउ फॉर L इज इक्वल टू 1 एंड S रिजल्टेंट ऑफ S1 S2 S3, अगर हम S1 S2 S3 का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो पहले देखिए S1 और S2 को हम लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि S1 प्लस S2 से S1 माइनस S2 तक इसकी वैल्यू वेरी करेगी इन द डिफरेंस ऑफ 1। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी और दोनों का डिफरेंस 0 आएगा। और तीसरी वैल्यू S3 अभी हमारी हाफ बची हुई है। तो इसके लिए जब हम देखेंगे तो आप देखो यहाँ पर जीरो, पहले ये जीरो से भिड़ेगा, फिर उसके बाद 1 से भिड़ेगा, और जब 1 से भिड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 के साथ प्लस होगा तो 3/2 आ जाएगा, फिर -1 होगा तो हाफ आ जाएगा, और 0 के साथ जब आएगा तो हाफ आएगा, यानी हाफ हाफ 3/2। ये 3 पॉसिबल वैल्यूज इसकी हो गई। नाउ फॉर L इज इक्वल टू 0, S हैव 1/2, 1/2 एंड 3/2। तो ऑब्वियस सी बात है कि J की जो वैल्यू आएगी वो 0, S इज इक्वल टू हाफ और L इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू हाफ आ जाएगी। सिमिलरली जब हम दूसरा पक्ष लेंगे, दूसरी वाले केस लेंगे, तो वहां L इज इक्वल टू 1 कंसीडर करेंगे क्योंकि केवल P लेवल है वहां पर, तो वहां J की वैल्यू 3/2 आएगी, और बीच के जो स्टेप्स हैं जैसे ऊपर किया गया है ऐसे हम करेंगे, then we will have 1/2, 3/2, 3/2 at 3/2. Let us have the transition corresponding to that. With the nuclear spin I is equal to 9/2, J is equal to half. The initial state is split into two hyperfine levels. That is for F that is with F is equal to 5 and 4. कैसे? इसका यहां पर भी I plus J to I minus J, तो I plus J करेंगे अगर तो क्या आएगा, ये 10/2 5 आ गया, और जब हम इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8/2 4 आ जाएगा, और इसके बीच में और कोई 1 के डिफरेंस में पॉसिबल नहीं है 5 और 4 के बीच में, इसलिए इसकी स्प्लिटिंग क्या होगी, इसकी स्प्लिटिंग 2 हो गई, दैट इज 5 और 4 हो गई, और इसका आर्डर नॉर्मल आर्डर रहेगा क्योंकि यहां से हमें ट्रांजिशन देखना है। दूसरे केस में क्या है, अगेन विथ I इज इक्वल टू 9/2 एंड J इज इक्वल टू 3/2, तो J और I के का फिर कॉम्बिनेशन करेंगे, तो पहले आप देखिए दोनों को जोड़ा जाए, तो जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 12/2 हो जाएगा, और 12/2 के बाद जब हम दोनों को इसमें से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, पूजा बताओ क्या आएगा, 4 कैसे आया, 4 कैसे आया, अरे 4 आया कैसे बताओ ना, I और J के टर्म में बताओ, कोई बताए, कुछ लोग कहते हैं हमसे पूछा नहीं जाता है, तो ये दिस इज ओपन कि भाई 6 कैसे आया, 5 कैसे आया, 4 कैसे आया, 3 कैसे आया, 2 क्यों नहीं आया, या इससे लोअर वैल्यू क्यों नहीं आई, या इससे हायर वैल्यू क्यों नहीं आई, कोई बताए, दिस क्वेश्चन इज ओपन टू ऑल।
अरे तो पढ़ाने से क्या फायदा जी तुम लोगों को जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। प्रिया गुप्ता जरा बताओ तो तुमसे शुरू करते हैं, क्या नहीं समझ में आ रहा है। प्रिया बताओ। यस सर। क्यों नहीं बता रही हो कि इसमें कैसे 6 आ रहा। सर ये मतलब आई और जे की वैल्यू मतलब कैसे करें? क्यों सर combination आई और कैसे जे होता को जब प्लस करेंगे तब 6 आएगा, है? हाँ तो माइनस इसके करेंगे पहले सॉरी। हमने क्या बताया वो था तो कि एफ की वैल्यू कैसे वेरी करती है, एफ की वैल्यू कैसे वेरी करती है। सर आई प्लस जे से आई माइनस जे विद डिफरेंस ऑफ यूनिटी। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है। तो पहली टर्म वैल्यू क्या होगी, पहली वैल्यू इसकी क्या आएगी। 9 प्लस अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 करेंगे तो 6 आएगी, फिर उसके बाद उसके आई बाद माइनस जे होगा करेंगे फिर आगे क्या करेंगे, आई प्लस जे माइनस 1 माइनस 1 करेंगे, फिर आई माइनस 2 आई प्लस जे माइनस 2 करेंगे, आई प्लस जे माइनस 3 करेंगे। ये कहां तक डिफरेंस ले जाएंगे प्रिया बताओ, ये डिफरेंस हम कहां तक ले जाएंगे। तो 4 तक। क्यों 4 तक ही ले जाएंगे। अरे तुम लोग यार दिमाग तो लगाओ यार, तुम लोग इतना हम चिल्ला थ्री कुछ तक समझ करेंगे आई माइनस जे आई मिनिमम वैल्यू तक जाएगी इसमें। वहीं पर रुक जाएंगे जहां की वैल्यू दोनों के डिफरेंस के बराबर हो जाएगी, उसके आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। क्यों, यस क्योंकि इसकी वैल्यू आई प्लस जे से आई माइनस जे तक वेरी करेगी। तो जब आई माइनस जे, पहले आप देख लो कि आई प्लस जे कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, और देख लो आई माइनस जे कितना हो रहा है। तो अब ये दोनों घटाओ कितना आएगा, 3 आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि 6 और 3 के बीच में 1 के डिफरेंस में जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं सब लाई करेंगी। तो 6 के बाद और 6 के बाद और 3 के पहले क्या क्या होगा, 5 और 4। 5 और 4। इसको पूछने में क्यों नहीं बताते हो तुम लोग पढ़ते लिखते हो नहीं कुछ, हमारे ही समय खराब करते हो। The selection rule for delta f is equal to 0 plus minus 1, but the transition from 0 to 0 is not allowed. That is the how much transition will be there? There will be the 6 transition. Hence the Bismuth line, that is the 4722 angstrom shows the 6 hyperfine component. ये देखो कितने अच्छे से दिखाया गया है कि पहले और दूसरे के बीच में ट्रांजिशन होना है, और पहले में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी नॉर्मल रूप से इनके एफ की वैल्यूज दी गई हैं। पहले 5 हुआ और उसके बाद 4 हुआ, लेकिन जहां पर ट्रांजिशन होता है उसका इन्वर्टेड फॉर्म होता है, यानी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो डीप होती है और जो लोएस्ट वैल्यू होती है वो ऊपर की तरफ होती है। इसीलिए देखो नीचे से 6 5 4 3 हुआ, और इनके बीच में जब ट्रांजिशन को देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें डेल्टा एफ इजिकल टू 0 आर प्लस माइनस 1 होना चाहिए। तो ये 6 हाइपर फाइन लाइन्स आ जाएंगी वहां पर। ये आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और कुछ नहीं समझोगे तो ऐसे ही रह जाओगे तुम लोग। Now let us have another example. So the hyperfine structure of the fine structure component of D2 of sodium having I is equal to 3/2. The transition is 3/2 to 2s1/2. ये हमने आपको दिया है एग्जाम्पल, इसको आपको स्वयं करना है। अगर आपको थोड़ा सा भी इस बात का वो होगा, ज्ञान होगा कि हम एमएससी के स्टूडेंट हैं और मुझे ऐसे न्यूमेरिकल्स करने चाहिए, आने चाहिए आगे के लिए, तो इसको आप स्वयं बिना कुछ देखे हुए पुराने बताए हुए एग्जाम्पल के आधार पे करेंगे। एंड देन आफ्टर यू कैन मैच इट विद द example which has been given in the Rajkumar, because I have deliberately given that example कि आप पहले स्वयं करिए और करने के बाद फिर देखिए कि किस तरीके से इसकी फाइन लाइंस हैं।
And if you do the practice, then definitely you will be able to solve the questions which are appearing in the competitive examination. झूठ मूठ का लोग कहते हैं कि हमारा नेट नहीं निकला, मेरा गेट नहीं निकला. सही बात तो यह है कि सब कामचोर हैं, पढ़ते नहीं. Now let us have the intensity rule. The sum of intensities of all the transitions starting from or ending on the same level is proportional to the statistical weight of 2f plus 1. Of that, for 2s half j is equal to half would be I plus half and I minus half. Hence, the intensity ratio will be 2 times I plus half plus 1 upon 2 times I minus half plus 1. And if you will solve it, then that is equal to I plus 1 upon I. And that will be equal to 5 upon 3. क्यों? क्योंकि जब इसकी वैल्यू आप देखेंगे तो 5/2 and 3/2 होगा, ये आपस में कट जाएंगे. तो ये इंटेंसिटी रूल है. कई बार इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांजिशंस is varying, what the rule is applicable there, with which intensity ratio we are able to compare that, what intensity of what spectral lines will be there. So this is all about what I was interested to discuss. If you have any question, please let me know. Otherwise, we should stop here. Anybody have any question? बताओ भाई. किसी को कुछ बताना है, इसमें पूछना है? सर स्लाइड नंबर 10 एक बार फिर से, वो जो क्वेश्चन आपने बताया है उसमें. अरे पता नहीं कहाँ से आ गया इसमें. सर जहाँ टेम्परेचर दिखा रहा है वहाँ पे एक बार कर्सर ले जाइए. सही यहाँ. यस सर, अब हटा दो. एनीवे, हाँ क्या कह रहे थे आप लोग, बताइए भाई. 10 पर सर जो बिस्मिथ वाला एग्जाम्पल था, ये वाला. यस सर. हाँ बताओ. सर जो ये ट्रांजिशन लाइन होगी वो कैसे पता चल रहा है? बेटा इसमें ट्रांजिशन लाइन हम एक्चुअली जो ये लेवल यहाँ पे डिफाइन किए हैं 1/2, 1/2, 3/2, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्या स्टेटस होगा. बट बेसिकली इससे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है. ज्यादा असर ये पड़ता है कि ये 1/2 और 3/2 यानी जे कपलिंग में इनकी जे की वैल्यूज कितनी हैं, क्योंकि जे की वैल्यूज के ही आधार पर आई वैल्यू का इंटरैक्शन होना है. तो इसलिए जो है ये जो जे की वैल्यू आई है और जो आपकी बेसिकली क्या है, इसमें ट्रांजिशन किस में हो रहा है, पीएस में ट्रांजिशन हो रहा है. तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम एस लेवल पे देखेंगे तो जे की कितनी वैल्यू होगी? 1/2 होगी ऑब्वियसली, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकती है. yes. और पी लेवल के लिए कितनी होगी? पी लेवल के लिए 1/2 और 3/2 हो सकती है. तो आप अब देखो कि पहले केस में क्या हो रहा है कि पी लेवल है और एस लेवल है और उनके करस्पॉन्डिंग 1/2 यानी लिया गया, और दूसरे के केस में 3/2 मैक्सिमम उसकी वैल्यू ली गई. तो जो ट्रांजिशन होना है कि j = 1/2 से j = 3/2 पर होना है. अब उसमें कितने नंबर ऑफ f वैल्यूज होंगी वो डिपेंड करेगा कि i और j के बीच में किस तरीके का ट्रांजिशन हो रहा है. जो बात यहाँ पर दिखाई गई, आपके पास अब दो स्टेट आ गई, j = ½ और j = 3/2. तो j = ½ के करस्पॉन्डिंग i की वैल्यू हम ले लेंगे
और देखेंगे कि आई और जे के कॉम्बिनेशन की एफ की कितनी वैल्यूज आ रही हैं। ऐसे ही हम देखेंगे कि जब हम j इज इक्वल टू 3/2 ले रहे हैं तब उसकी कितनी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, ओके सर। और कोई क्वेश्चन हो